Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm back with new lesson and that is very helpful advantages for me and for you as well. So before starting, if we have to know about the topic, what does mean by topic? Is it a topic is very helpful? Is it a topic very advantages? Is it advantage? It is the topic is very interesting. So let's get started from here. So the first we have to know about the future continuous tense, that is the related to the tenses. My sequences is starting from the tenses, so I want to share with you that is tenses. So the first we have to know about the tense. What does mean by tense? Tense means that Latin word is mean to it tell us about the time and period or as well. So the future continuous tense definition is it seems like that an action or event is still in on future continuous tense. So for that occasion, for that moment, we value the future continuous tense as well. Is it advantages for you? What is the usage of future continuous tense? What is the benefit of future continuous tense? Why we are using future continuous tense? Where we will use the future continuous tense? And how we will make sentence? These are all kind of question is arising here from according to my mind. So for that reason, the first we have to know about the future continuous tense. What does mean? ये आपके साथ मैंने एक लेक्चर शेयर किए जिसका मकसद यही है कि आपको हम इल्म होना चाहिए कि फ्यू कंटिन्यूस टेंस होते के इसके इस्तेमाल के इसको हम कहाँ इस्तेमाल करें, इसकी यूजेज के, इसके लिए क्या बेनिफिट्स है, आया ये हमें कोई फ़ायदा देगा या नहीं। तो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस साथ वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Now I'm back in the front of screen. I would like to share the some topic, and that name is future continuous tense. And again, I would like to start with the name of Allah, who is the most merciful, and generating in Arabic. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I would like to share that is the topic name is the future continuous tense, and it is our fifth lecture and future continuous tense. So the first we have to know about the what does mean by the future continuous tense. और सवाल यहाँ the question is rising here, सवाल यहाँ भी ये पैदा होना चाहिए कि हमें टेंसेस का मतलब क्या है और ये कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो टेंसेस हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है एक लैटिन वर्ड है, इट्स मीन it tells about the time and period and era. So यहाँ future continuous tense it's mean the future. What does mean by the future continuous and tense? Futures we have that is a third period, and continuous is still continuous, any function, any activity is going on in future. So for that reason we will use future continuous tense as well. सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से हमारे पास अब इसकी तारुफ हमें सबसे पहले तो अगर फ्यूचर कंटिन्यूस हमने पढ़ लिए तो सबसे पहले हम ये इलम होना चाहिए कि व्हाट डज मीन बाय द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. The question is rising here why we are learning the future continuous tense, what's the benefits of the future continuous tense, why we are learning continuous tense, and where we will use the usage of continuous tense. It's mean future continuous tense. इधर इसकी जो हम यूजेज इसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसके तारुफ का इलम होना चाहिए, इसकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होती क्या है। ये मेरे साथ आपके साथ एक रिटर्न फॉर्म में भी शेयर किए। इसका मतलब है अगर कोई स्टिल, अगर कोई एक्शन, कोई इवेंट, कोई एक्टिविटी वो कंटिन्यू हो रहे इन फ्यूचर टाइम में, अब हम उस मौके में इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जो इस पीरियड को हम जाना जाता है वो है हमारे पास future continuous tense. The action or event is still continue in future time. So for that occasion we will use the future continuous tense. This period as known as future continuous tense as well. Our future continuous tense is your third lecture है, उसकी सबसे पहले अगर if we want to make a sentence, so we have to remember structure, and I want to share some example. For example, if we want to do something in practical life, so the first we have to make a planning. For example, if we want to go school tomorrow, so from the night we are planning
to fulfill our bag and fulfill our demands, lunch and something at morning, it will be easy. अगर हम कोई काम कर रहे हो तो हमें स्ट्रक्चर का इल्म होना चाहिए कि स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करेंगे ये इतनी हमारे पास कितनी इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास जो है सब्जेक्ट प्लस, अब हमारे जो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपके साथ शेयर की। जो हमारे पास जो सब्जेक्ट, इसको हम फार्मूला भी कहते हैं। अब जो सब्जेक्ट का मकसद क्या है, इसकी इस्तेमाल क्या है, इसको कहते क्या है, इसका मतलब क्या है। तो सब्जेक्ट का मतलब है डूअर ऑफ एक्शन, इट्स मीन हु इज़ परफॉर्मिंग एक्शन, ये काम कौन कर रहा है। इस मीन ये हमें इस सब्जेक्ट से हमें ये इल्म होगा कि इस चीज़ का मकसद है, इसको हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम इसकी इल्म होने चाहिए। अब विल भी जो हमारे पास है, इधर हम विल भी इस्तेमाल करते हैं, शेल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको आई विल टेल यू इन after some lecture I will tell you where we are using the will be and shall be. But in modern English we are using will be in all pronouns. But according to my teacher, he told me that if you want to give somebody else to letter senior from parents or teacher, so you should to use the shall. It's the respectful word are using. अब हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, यहाँ V1 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, इट्स मीन दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मकसद ये होता है कि इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली वी हैव थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। For the easiest way we have to remember, and we will call and we are calling first form for plus ing, we are calling fourth form of verb. अब हमारे पास जो इसकी लास्ट है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मकसद क्या है, इसके हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। ऑब्जेक्ट हमें सेंटेंस क्या बोलते हैं, आइदर इज इट राइट, वी कैन मेक सेंटेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, वी कैन मेक सेंटेंस फ्रॉम सब्जेक्ट, कुड वी मेक अ विदाउट वर्ब सेंटेंस। अगर हम कोई सेंटेंस बनाकर इसमें इन चारों चीज़ों में अगर कोई चीज़ की कमी हो तो हमारी सेंटेंस अधूरा होगा, वो आधा होगा, उसकी हम समझ नहीं आएंगी। अगर समझ आ भी जाए तो अब जो समझना हो, जो हमारे पास जो ट्यूटर होगा, जो हमारा इंस्ट्रक्टर होगा, हमारे जो साथी होंगे, उनको समझ नहीं आएंगे। अगर हम कोई सेंटेंस बना रहे होते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये इल्म होना चाहिए कि इन चीज़ों का मकसद क्या है, इस चीज़ होती क्या, ये क्या चीज़ है, इसको हम क्यों पढ़ते, इसकी यूजेज क्यों है। यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब है अ थिंग ऑन विच वी वर्क, जिस पर काम हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास हम सेंटेंस कोई बना रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ही विल बी टेकिंग क्लास। अब जैसे कि मैंने ये स्ट्रक्चर अब रियलाइज़ किया, अब मैं इसके साथ एक और टेंस की मुशाबित देता हूँ जो हमारे पास लेक्चर नंबर 4 गुजर चुका है, वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो ऐसी टेंस होती है जिसके हम वो द एक्शन और स्टिल कंटिन्यू ऑन इन पास्ट टाइम इट्स नदर बी कम्प्लीटेड। अगर वो कंप्लीट नहीं हुई होती लेकिन वो कंटिन्यूस टेंस में होते हैं, पास्ट दौर में होते हैं, हमारे जो माजी में होते हैं, हम उसकी अब उस टेंस की और फ्यूचर कंटिन्यूस की एक मुशाबियत होगी, वो है फॉर एग्ज़ाम्पल ही वॉज टेकिंग क्लास। ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्यों क्या है, ये क्यों टेंस है, ये हमें मुझे कैसे पता चल रहा है और आपको कैसे पता चलेंगे। अब ये बहुत इजी तरीके से आपको ये रियलाइज़ होगा इन दोनों स्ट्रक्चरों में क्या फ़र्क है। अब क्योंकि यहाँ मैंने जो सब्जेक्ट भी है फर्स्ट फॉर्म, उसमें हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास उस तरह विल, यहाँ हम यूज़ किया है विल बी, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम इस्तेमाल करेंगे वाज या आइतर विल भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ही वॉज टेकिंग क्लास एंड नाउ आई वांट टू कन्वर्ट इन कंटिन्यूस टेंस, सो आई टोल्ड यू दैट वाज past continuous and now I am telling you that is future continuous. He was taking class, he will be taking class, it's a same, but the action or event is still continue. The one is the continue in past tense, another will be complete in continuous tense, is still continue. If we remember this structure, if we want to remember this structure, we can make easily sentence more than it will be helpful and advantages for me as well and for you as well. So you should and we should to remember this kind of structure to make sentence easiest way. अब फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ इसके हमें तो हम इंग्लिश में आपको ये इसलिए इंग्लिश में आप बातचीत हो रही है, इंग्लिश में हम इसके साथ में इसकी जो ट्रांसलेशन का इसको एलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेनेशन हो रही है, ये इसलिए क्योंकि मैं इंग्लिश लेक्चर देता हूँ और इंग्लिश लेक्चर की से अगर आप हमारा जो मकसद है कोई स्टूडेंट अगर लैंग्वेज सीख रहा हो तो वो इस तरीके से वो लैंग्वेज सीख सकते हैं जिस तरह मैं सीख चुका हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ।
because of that I am learning from you and you are learning from me, so we are distinct from one another. क्योंकि हम सीखने सिखाने वाले हैं, हम कभी भी always we remember student as a teacher, not student as a teacher, remember both of them. अब हमारे पास कंटिन्यूस टेंस की जो उर्दू में पहचान है वो हमारे पास उसका जो होगा रहा है, रहे होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हमारा जो सबसे पहले जो हम ये उर्दू में है बयान करते हैं, ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस के में उर्दू में पहचान है। अब लेकिन मसलन अब ये मसलन यहाँ आ रही है कि वो आ रहा होगा जब मैं सोया हुआ होऊंगा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ समथिंग, ही विल बी कमिंग देन आई विल बी स्लीपिंग, इज राइट। एंड देयर इज़ अ टू सेंटेंसेस कम्बिनेशन सेंटेंसेस, लेकिन यहाँ भी परेशान नहीं होने क्योंकि मैं आपने एक एक पढ़ने हैं, वो एक एक स्टेप के साथ आपने करने। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ हम खाना खा रहे होंगे, हम खाना खा रहे होंगे। अब यहाँ मैं इस्तेमाल करूँ, इसको मैं एक ट्रांसलेशन करती हूँ, इसके साथ शेल के साथ करता हूँ। वी शेल बी ईटिंग मील, इधर हम खाने को मील भी कहते हैं विकेबलरी के लिहाज से, लंच भी डिनर होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड कंडीशन वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑब्जेक्ट एज वेल। अब ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो अहमद पानी पी रहा होगा, ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर, बट इंस्टेड ऑफ अहमद आई एम यूज्ड Ahmad, but I want to use the he is drinking sorry for that, he will be drinking water, is right। अब हमारे पास किसी मश्क के एक्सरसाइज वी हैव, दैट इज द विल बी एंड शेल बी, हाउ व्हाई एंड वेयर वी विल यूज द विल बी एंड शेल बी। these three questions are arising here, so keep it in mind, remember, listen carefully। सो आई वी यू दे ही शी इट नेम, ये हमारे पास जो है इसको हम विल बी शेल बी कहते हैं, लेकिन ये हमारे इसको हम कहते हैं प्रोनाउंस कहते हैं, इसको हम दीज आर कॉल्ड प्रोनाउन। इसमें हम यूज़ करेंगे इन सारे चीज़ों के बाद हम विल बी शेल बी इस्तेमाल करें। यहाँ पर अगेन स्ट्रक्चर की बात हो रही है ताकि आपको ये सेंटेंस की समझ आ जाएगी हमने क्या किया। और ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि ये काम किस पर हो रहा, थिंग ऑन विच वी आर, किस पर ये काम हो रहा है। अब यहाँ कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर किए हुए हैं, वो एग्जांपल आपको वो इंटरोगेटिव फॉर्म में, वो सवालिया के फॉर्म में होगी, क्योंकि उसको पंक्चुएशन वाली साइन है जो साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क यहाँ यूज़ हुए। फॉर एग्जाम्पल क्या वो मेरे साथ जा रहे होंगे, विल शी बी गोइंग विथ मी, और सॉरी फॉर दैट जा रही होगी, शी विल बी गोइंग विथ मी। अगर क्या वो मेरे साथ जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग विथ मी। अब हमारा जो दूसरी एग्जाम्पल है, क्या तुमको मेरी बात की समझ आती है, विल यू बी गेटिंग मी। क्या वो टीवी देख रहे होंगे, विल दे बी वॉचिंग टीवी। तो ये हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल है आपके साथ में, और इसके ऊपर एक्सरसाइज करें। लेकिन इससे पहले हम ये तो हमारे पास उर्दू में खाली पहचाने, इसको टच करने के लिए, ताकि हमारे जो डेली जो टेंथ तक हमारे जो बेसिक्स है उसमें हमें इन चीज़ों की ट्रांसलेशन आती हैं, ताकि इसकी उर्दू की एग्जांपल इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब हमारे पास जो इंग्लिश में कुछ एग्जांपल है, आई हैव रिटन बाय सेल्फ स्टडी फ्रॉम यू, जस्ट फ्रॉम यू एंड फॉर गुड कन्वर्सेशन, फॉर गुड अंडरस्टैंडिंग, आई एम बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। तो सब्जेक्ट विल बी फर्स्ट, ये जो हमारे जो रेड कलर की जो साइन है, सब्जेक्ट विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इन चीज़ का मकसद ये होता है कि ये काम किस पर हो रहा है, किसके लिए हो रहे हैं, और ये सब्जेक्ट तो हमें ये इल्म होना चाहिए कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है। सब्जेक्ट का मतलब ये दोबारा मैं भी बता रहा हूँ ताकि आपको रियलाइज़ हो जाए, आपके कोई जहन से शक व शुबात ख़त्म हो जाए कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है। क्योंकि अगर हमने इंग्लिश सीखनी है तो हम इंग्लिश को हम दूसरे लैंग्वेज से हम अटैच नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, so we want to compare to another. For example, if we want to compare one to another, we will become a doubtful, so not we stay with there and here। अगर हमने कोई लैंग्वेज चीन हम एक दूसरे लैंग्वेज के साथ इसलिए हम कंपेयर ना करें, फिर हम एक के भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन हमारे पास जो सभी से कुछ एग्जांपल है वो है ही विल बी फ्लकिंग फ्लावर, और हमारे पास जो दूसरा है वो शी विल बी मेकिंग टी, another we have that it will be eating meal, and the third we have singular, its mean which is one number, and here is also we are using instead of nouns we are using Salman will be going Lahore, is right। अब हमारे पास जो है आई विल बी लर्निंग ड्राइविंग, वी विल बी स्पीकिंग उर्दू, यू विल बी टेकिंग क्लास, दे विल बी इंजॉइंग पार्टी। अब पार्टी इज़
एंड यू आर आप सोच होंगे ये पार्टी ने गलत प्रोनाउंस किया, लेकिन ये एक इलेक्ट्रिक है क्योंकि अमेरिकन एक्सेंट उसमें टी को डी प्रोनाउंस किया जाता है। सो फॉर दैट रीज़न आई यूज़ पारी। अब हमारे पास जो प्लूरल वर्ड है, इधर हम दो यूज़ इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल में हम दो नाउन इस्तेमाल करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई पुट माय नेम एंड माय ब्रदर नेम एज वेल, फॉर एग्जांपल Ali and Qasim, Ali and Qasim will be riding on bike. This is a plural example. These are all called positive sentences. A positive sentence is always be positive. It is a kind of statement, as a statement must be end with the help of full stop. अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जो हमारे पास वो एग्जांपल है। अब पॉजिटिव सेंटेंस से हम कंटिन्यूस पॉजिटिव सॉरी फॉर दैट, अगर पॉजिटिव सेंटेंस से हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं, सो हाउ वी विल डू दैट। सो इट्स इजी, यू आर थिंकिंग इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, बट नॉट फॉर डिफिकल्ट, इट्स इजी। यू हैव टू फोकस ऑन मेथड एंड रिमेंबर द स्ट्रक्चर। अब इंटरोगेटिव क्वेश्चन अगर हम बना रहे होते हैं तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन से हमें ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन इज एंड विद द क्वेश्चन मार्क। अब पॉजिटिव सेंटेंस से हमारे फॉर एग्जाम्पल ही विल बी प्लकिंग फ्लावर इस हमारे पास ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब पॉजिटिव सेंटेंस अगर हम कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं, अब इंटरोगेटिव क्वेश्चन में टू टाइप्स है। द फर्स्ट वी हैव कन्फर्मेटिव क्वेश्चन, इट्स मीन वेयर वी विल यूज कन्फर्मेटिव क्वेश्चन, इट्स मीन टू कन्फर्म थिंग विद इन यस और नो। ये जो कन्फर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं ये हमारे जो डेली कन्वर्सेशन हम इस्तेमाल करते हैं, हमने कन्फर्मेशन अपने आप को सेटिस्फाई के लिए कि आपने ये काम किया है या नहीं। अब हमारे पास विल ही बी प्लकिंग फ्लावर। अब इसकी इज्जत मेरे फॉर एग्जांपल he will be plucking flower is a positive sentence, and now I want to convert in the interrogative question is the first part we have confirmative question. So the before the helping verb is the comes in the beginning of sentence. For example, will he be plucking flower? Yes he will. I thought the question has two answer, yes or no. No he won't. I have mentioned both of them. And the third we have WH, it's mean informative question. It's mean that it gives information more than more. For example, now how we will make informative question from the confirmative question. So it's an easy way. I have used just for example confirmative question is will he be plucking flower, and यहाँ हमने इस्तेमाल किया है कि हम प्लकिंग फ्लावर से पहले हम विल से हम कन्फर्मेटिव क्वेश्चन से पहले हम वेयर हमने WH का इजाफा किया। फॉर एग्जांपल विल ही बी प्लकिंग फ्लावर, सो द आंसर विल बी ही विल बी प्लकिंग फ्लावर फ्रॉम गार्डन। दीज वी हैव इंटरोगेटिव क्वेश्चन, ये हमारे पास उसके एग्जाम थे। और ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन मैं इसकी डिफिनीशन नहीं लिख चुका हूँ, सॉरी फॉर दैट। आई विल राइट ऑन नेक्स्ट लेक्चर एज वेल inshallah. So the informative question you have to do practice more than more. It's mean one sentence you convert into 5 times, and so this kind of conversation it gives you and it gives us helpful and beneficial for us. We should to do practice for us. Thank you so much. Be happy and spread happiness. I will back with newness. I'll tell then take care. Assalamu alaikum.